Hello students, in this lecture we will discuss energy stored in an inductor. So in the last lecture we had taken examples based on mutual inductance, alright, and in this lecture we will be discussing energy stored in an inductor. So there is an inductor, resistor, a battery, right? So at t equal to 0, switch is on and the current flows like this, okay? So this is the current I. So the loop, according to loop law, right, we can write E plus E. The current will grow through the inductor, so inductor will try to oppose the growth of the current, right? So the inductor, the EMF of the inductor will be like this. It will try to oppose the growth of the current, because if the current grows, then what will happen? Then the magnetic flux will also grow, right? But it has a tendency to oppose the change in flux, right? So whenever there is a change in flux, an EMF is induced such that it will try to oppose the change in flux. So the positive polarity will be this side and the negative will be on the right side. So that this induced EMF will try to oppose the growth of this current. Okay. So it will be E minus L di by dt minus IR is equal to 0. Okay. So this is the equation. So from here, right, we'll get E is equal to L di by dt plus IR. Now what we will do is we will multiply this equation with I. Okay, so we will multiply this equation with I. So then we will get EI is equal to L. Okay, I, small I. Let's take small I. So this will be EI. So this is L I di by dt. So we have multiplied this. This is plus I square R. Okay. So multiply the whole equation with I. Okay. Now what is this EI? Okay, let us talk about this. This is EI is the power supplied by the battery. Right? EI, this is the power supplied by the battery. This is the power supplied by the battery. What is this LI by dt? So this is the rate of energy stored in the inductor. Okay, this is the rate of energy or power. Okay, rate of energy मतलब power. So rate of energy stored in the magnetic field of inductor. And what is this I square R? So we know that I square R is the electrical power dissipated in the resistance. This is what? This is the electrical power dissipated, right? Electrical power dissipated in the resistance. So in the resistor. Okay. All right. So EI is equal to LI di by dt plus I square R. Now, if we multiply, the entire thing by dt, this is the equation. Now we multiply the entire thing by dt, then what we will get? Then we will get, EI dt is equal to LI di plus I square R dt. Okay, okay. So this is the equation we will get. Okay, so the energy stored in the inductor. So the energy, because this is power, right? This is all power. So power into time will give you energy. This is the
rate of energy stored, this is the rate of energy dissipated. So if you multiply this with time, so what you are going to get, you are going to get power into time. So you are going to get energy, that is du. Okay, okay. So the energy stored, so the energy stored, so यहाँ से the energy, this is all energy now this is the energy stored du, this is the energy stored in the inductor. Okay, so the energy stored in the inductor, so that will be du is equal to LIDI. Okay, so we'll integrate this. So initially the current is 0, right? In this circuit, initially the current is 0, right? At t equal to 0, the current is 0. And at t equal to t, that is after few seconds, few milliseconds, the current becomes I, the maximum current, right? That is the steady state. After some time, the circuit comes to a steady state, right? So the current becomes maximum. So we'll integrate it from 0 to capital I, right? The maximum steady current, I is the maximum steady current. So the energy stored, right, in the magnetic field UB, this comes out to be half Li square, half Li square. So this is the magnetic energy. This is the energy, right? This is the energy stored. So half Li square, this is the energy stored in the inductor. Okay, so this point understood. So we have discussed this derivation here. All right. Okay, so please note this down. So please all of you note this down. So the most important point here is, right, the first point. So that is, the energy in an inductor is actually stored in the magnetic field within the coil. So this we should know, right? What is it? The energy in an inductor is actually stored in the magnetic field within the coil. In the okay, so this is a very, very important point. We should always remember this. Okay, so now we will find out the formula for magnetic energy density. Okay, magnetic energy density, that is small u. Okay, so that will be total energy divided by volume. So we'll do this through an example. We'll just take an example for this and we'll try to understand कि magnetic energy density क्या होता है. जैसे electrical energy density क्या होता है, वो आपको याद है, वो होता है half epsilon naught E square, right? तो उस तरह से यहाँ पे जो magnetic energy density है UB, ये क्या होगा? So let us try to find it taking an example of solenoid. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एक solenoid के बारे में. तो एक solenoid ले लेते हैं जिसका जो लेंथ है वो L है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है. ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है यहाँ पे? A, लेंथ L है. तो अब इसमें जो टोटल एनर्जी स्टोर होगा, राइट, इसमें जो टोटल एनर्जी स्टोर होगा वो टोटल एनर्जी कितना होगा? तो अभी देखा हम लोगों ने कि टोटल एनर्जी जो होता है वो होता है हाफ L I स्क्वायर. ठीक है, ओके. तो जो इंडक्टेंस है किसका, इसका इंडक्टर का, वो हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, राइट, कि इंडक्टेंस का वैल्यू आता है म्यू नॉट n स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल. ये आया था इंडक्टेंस का वैल्यू. तो ये पाई आर स्क्वायर एल जो आप देख रहे हो, राइट, पाई आर स्क्वायर एल, ये वॉल्यूम है. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द इंडक्टर. तो हम लोग बोल सकते हैं कि इंडक्टेंस का वैल्यू आएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर वी. ठीक है,
तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर डालनी है, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर वी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको पुट कर दो, ठीक है। इस जगह हाफ इंटू, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर वी, ये हमने डाल दिया, तो हाफ एल और यहाँ से हो गया आई स्क्वायर, ठीक है। ओके, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे जो है क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को बेसिकली एनर्जी डेंसिटी निकालना है। तो एनर्जी डेंसिटी जो होगा, राइट, एनर्जी डेंसिटी वो जैसे मैंने बताया आपको, वो होगा टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हो जाएगा। अब टोटल एनर्जी हो गया हाफ, ये आप देख रहे हो, दिस इज म्यू नॉट एन स्क्वायर वी वॉल्यूम, और ये आई स्क्वायर। तो डिवाइड बाय क्या करोगे आप, डिवाइड बाय वी करोगे वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें U मिल जाएगा, राइट, एनर्जी डेंसिटी कितना मिल जाएगा, हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर, ठीक है, ये मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग इसको ऊपर नीचे जो है म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो चीज़ आ गए, इसको हम लोग मल्टीप्लाई बाय म्यू नॉट और डिवाइड बाय म्यू नॉट कर देंगे, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो सोलेनॉइड होता है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू नॉट एन आई होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर, आई स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, राइट, ये म्यू नॉट से म्यू नॉट आपने मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे हो जाएगा आपके पास 2 म्यू नॉट, ठीक है। अब ये जो ऊपर का आप देख रहे हो, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये जो है ऊपर वाला म्यू नॉट एन आई, राइट, सो दिस इज बेसिकली बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर यानी फील्ड स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। तो हम लोगों को यहाँ से एनर्जी डेंसिटी मिल गया, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हमें यहाँ से मिल गया, वो है बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, ऑलराइट, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके आगे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सो स्टूडेंट, लेट अस टेक दिस एग्जांपल। यहाँ दिया गया कंसीडर द सर्किट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फिगर हम लोगों ने बनाया है, एक रजिस्टर है, इंडक्टर है, दो स्विच है, स्विच 1 स्विच 2 है, एक बैटरी है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड इन पोजीशन 1, तो 1 पे जब क्लोज कर दिया, राइट, 1 पे, एंड ओपन्स इन पोजीशन 2, ओके। तो यहाँ पे क्लोज्ड, यहाँ ओपन, तो क्या होगा, तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बैटरी, इंडक्टर, रजिस्टर, ये सब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल वर्क मस्ट बी परफॉर्म्ड ऑन द इंडक्टर ऑन द रजिस्टर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा, रजिस्टर के थ्रू एनर्जी हीट डिसिपेट होगा, इंडक्टर पे, इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर होगा, ठीक है। तो इस तरह से होगा, राइट। अब यहाँ पे हम लोगों से पूछा गया है, पहला सवाल पूछा गया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पीएल बाई पीआर। पीएल मतलब पावर डिसिपेटेड या पावर स्टोर्ड इन द इंडक्टर, and PR is the power dissipated in the resistor through the resistor. So let us start. The energy stored in the inductor कितना होता है, तो energy stored in the inductor जो होता है तो वो हो जाएगा, energy stored in the inductor हो जाएगा हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लो तो आपको पावर मिल जाएगा PL, तो PL हो जाएगा du/dt, इसका डेरिवेटिव, तो आपको मिल जाएगा हाफ एल, और ये हो जाएगा 2I/dI/dt, ठीक है। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो आपको पावर डिसिपेट या पावर स्टोर्ड इन द इंडक्टर, इन रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर मिल गया, कितना मिल गया, LI/dI/dt मिल गया, ठीक है, LI/dI/dt, ओके। अब पावर डिसिपेटेड थ्रू रेजिस्टर कितना होगा, तो रेजिस्टर के लिए हमें पता है कि पावर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है I²R, ओके। तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें पावर थ्रू रेजिस्टर और इंडक्टर मिल चुका है, हमें बस इसका रेशियो लेना है, ठीक है। तो लेट अस टेक द रेशियो,
तो हमें चाहिए PL और PR, इसका हमें क्या चाहिए, रेशियो चाहिए. सो लेट अस टेक द रेशियो. तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा PL मिल जाएगा LI DI/dt, और जो पावर डिसिपेटेड थ्रू द रजिस्टर जो है, राइट, रजिस्टर, ये कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा I²R. तो यहाँ पे ऊपर और नीचे एक एक आई कैंसिल कर दो आप, ये एक आई और एक ये आई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. और यहाँ से हम लोगों को जो रेशियो है, ये रेशियो कितना मिल जाएगा, L/R DI/dt/I, ठीक है, ऐसा मिल जाएगा. तो L/R क्या है, L/R जो है वो टाइम कांस्टेंट है, ठीक है, इज द टाइम कांस्टेंट. सो PL/PR हो जाएगा टाउ इनटू, या टाउ बाई आई बोल दो आप. सो टाउ इनटू DI/dt डिवाइड बाई आई. सो दिस इज द आंसर टू द फर्स्ट पार्ट, ठीक है. सो यहाँ से जो फर्स्ट पार्ट है अपना वो सॉल्व हो गया, ठीक है, और हमें PL/PR मिल गया. ओके, अब यहाँ जो है करंट क्या करेगा, करंट का ग्रोथ होगा, ठीक है. द करंट विल ग्रो थ्रू द इंडक्टर, करंट जो है इसमें ग्रो करेगा. तो अब इसमें बी पार्ट जो पूछा गया हम लोगों से, वो पूछा गया है कि एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ PL/PR, एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ PL/PR एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है. तो PL/PR जो है इसको हमें एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एक्सप्रेस करना है. तो चलिए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एक्सप्रेस करते हैं. तो यहाँ पे इसको जो है हम लोगों को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एक्सप्रेस करना है, ठीक है. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, करोगे, यहाँ पे आपको पता है कि आई का जो इक्वेशन होता है, राइट, इस केस में आई का जो इक्वेशन होता है वो होता है I0, और ये ग्रोथ ऑफ करंट है, तो 1 - e⁻t/τ, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला आई का. तो यहाँ से जब उसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको di/dt मिलेगा. तो di/dt का वैल्यू कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा, तो I0 कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और ये e⁻t/τ का डेरिवेटिव हो जाएगा, आप लिखोगे -1/τ, ये आ जाएगा, जो कांस्टेंट है 1/τ उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा e⁻t/τ, ठीक है. ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला, e⁻ax का फॉर्मूला होता है -a e⁻ax, तो ये हम लोगों ने यूज किया. तो यहाँ से हमें di/dt कितना मिल गया, ये हमें मिल गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I0/τ, और ये e⁻t/τ, ठीक है. I0 क्या होगा, I0 इज द स्टेडी करंट विच विल बी E/R, बिकॉज एट t इक्वल टू इन्फिनिटी. तो जो ये करंट है, ये जो आप करंट देख रहे हो, तो ये जो करंट है, राइट, दिस इज एट स्टेडी, दिस इज द स्टेडी करंट. स्टेडी करंट मतलब एट t इक्वल टू इन्फिनिटी. तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होता है, द इंडक्टर बिकम्स अ कंडक्टर, इंडक्टर बिकम्स अ कंडक्टर, एंड द करंट बिकम्स मैक्सिमम, दैट इज E/R, ठीक है. तो अब ये जो हमारे पास करंट और di/dt का वैल्यू आया है, ये हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है. ये हम लोग यहाँ पे इस PL/PR के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें जो डिजायर्ड आंसर है वो मिल जाएगा, ठीक है. ओके, तो लेट्स डू दैट. तो लेट्स डिवाइड इट. तो यहाँ से जो PL/PR का वैल्यू है, राइट, वो मिल जाएगा. तो कितना मिलेगा आपको, देखो PL/PR का जो वैल्यू है, तो वो है टाउ, राइट. ओके, सो आप लिख लोगे यहाँ पे टाउ इनटू di/dt का वैल्यू कितना है, तो di/dt का वैल्यू है I0/τ e⁻t/τ, ठीक है, ये हो गया. ओके, तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन तो नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं ये पार्ट यहाँ से डिलीट कर देता हूँ. ओके, ओके, तो ये हो गया. और
यहाँ पे आप क्या कर लो, इसको डिवाइड कर लो किससे, आई से। तो आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू है आई नॉट 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ। तो आई नॉट से आई नॉट क्या हो गया कैंसिल, टाउ से टाउ हो गया कैंसिल, ठीक है। और यहाँ हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ, ठीक है। तो अब हम लोग ऊपर और नीचे ई माइनस टी बाई टाउ से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई ई रेज टू टी बाई टाउ माइनस 1, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, ठीक है, फॉर बी पार्ट। लेट अस कम टू द सी पार्ट। सी पार्ट में हमसे ये पूछा गया था कि if the time constant of circuit is t, what is the time at which PL is equal to PR? What is the time at which PL will be equal to PR? ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि PL by PR का जो रेशियो है वो तो ये आया है, दिस इज PL by PR। तो अगर PL हैज टू बी इक्वल टू PR तो क्या होना चाहिए, तो फिर PL by PR का रेशियो 1 होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। PL by PR का रेशियो कितना होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। तो बस हम लोग वो कॉन्सेप्ट यूज करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो PL by PR है राइट, वो तो ये है। तो PL by PR जब 1 होगा तब क्या होगा, तब PL इज इक्वल टू PR होगा, ठीक है। तो इसका मतलब 1 बाई ई रेज टू टी बाई टाउ माइनस 1 जो है ये 1 के बराबर होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है, ओके। तो इसको सॉल्व करके हमें टी निकालना है। क्वेश्चन में दिया गया था टाउ इज द टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन में थोड़ा लिखते हुए गलत हो गया है, टाउ जो है वो है टाइम कांस्टेंट, टाउ इज द टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो चलिए अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ई रेज टू टी बाई टाउ माइनस 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 2, 2 इज इक्वल टू ई रेज टू टी बाई टाउ, ठीक है, ओके। तो हम लोग आ गए हैं लास्ट स्टेप पे। तो लास्ट स्टेप क्या होगा, तो आप दोनों साइड जो है एंटी लॉग ले लो, यू टेक एंटी लॉग, सॉरी यू टेक लॉग, आप दोनों साइड लॉग ले लो, ठीक है। तो आप लॉग लोगे तो ये हो जाएगा ln2 इज इक्वल टू टी बाई टाउ, टी बाई टाउ। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल गया, टी का वैल्यू मिल गया। टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टाउ ln2। अब ln2 का वैल्यू कितना होता है, 0.693 होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हो 0.693 टाउ, ठीक है, 0.693 टाउ, okay, done, okay. So this is how we'll solve it. So please note down this question, we will take another question now, ठीक है। हम लोग एक और क्वेश्चन लेंगे।